हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हियर द ecosystem is the self a sustaining unit of nature. It is defined as the functionally is the independent unit of nature where a living organism interact among themselves as well as with their physical environment. In the nature, two major categories of the ecosystem exist here is a terrestrial and aquatic. Terrestrial and aquatic is the most important of the nature as a two major category here. There is a forest, desert and the grassland and the example of terrestrial ecosystem. There is the most important there land system. There is a pond, lake and wetlands and the salt water are some example of aquatic ecosystem. There is the most important for the example here. And the crops, land and aquariums are the example of man-made ecosystem. The aquariums are the example and their land is example of is a man-made ecosystem. So here the interaction between the living organism and their environment can be studied in a puddles of the water as a whole in the tree, which are the various small ecosystem or in the large ecosystem such as a forest, river and oceans. The irrespectives of their size, all the ecosystem share many common characteristics. Let us study of the moderate size pond ecosystem to be understand its structure and function of component. So here it is a show in this diagram. There is a solar energy and respiration. There is CO2 and O2 and H2O is here and transpirations and their feeding is a carbon dioxide, oxygen and H2O. There is a most important diagram here. There is a diagram is the next part of the component of the ecosystem. There is many part here. It is a transition nutrient, abiotic element and decomposer and the composition of the dead remaining excretory waste and the consumer. There are nutrients as the feedings here. There is the most important for component of ecosystem shown in this picture. So here shown in this figure, there is a pond ecosystem. You can see that it is a solid body of water, and the sun as a light is up penetrate into it. It has a sediment as the substrate at the bottom. That is a source of nutrition for a living organism, and the living organism in it are small floating plants as the submarines in the vegetation and the rooted plants. There are animals of various size ranging from to the macroscopic to large fishes. All this component of the pond ecosystem can be arranged to be give its a defined structure. Here show the diagram of pond ecosystem. There is most important of pond ecosystem here. There are present of all types of animal, the carnivorous, herbivorous, and the producer there is a present here. The rooted vegetation is a producer is a musk grass and the bacteria and fungus is a reducer and the basic inorganic and organic compounds here and bottom from to herbivorous and sediment or lotus is a catus is a carnivorous is a secondary consumer and secondary consumer is carnivorous tertiary consumer. There is all types of present in this pond ecosystem. There is a pond ecosystems here is the most important. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है पहाड़ी तंत्र। देखिए पहाड़ी तंत्र जो है इसका मतलब इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इकोसिस्टम के पहले ही हमने डेफिनेशन समझा था कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें जो क्रियाएं होती है वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो यानी हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु को ही हम इकोसिस्टम या पहाड़ी तंत्र कहते हैं, जो कि बहुत साधारण शब्द था। कहते हैं पहाड़ी तंत्र प्रकृति की एक स्वयं पोषी इकाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वयं ही जीव अपना जो है अपना आगे का जो है प्रोग्रेशन करते हैं, आगे की क्रिया करते हैं। इसमें जो है प्लांट जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देता है और उसके उपरांत जितने भी जीव जंतु होते हैं प्लांट के बने हुए उत्पादों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जो है इकोसिस्टम में बने रहते हैं। इसे प्रकृति की एक क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है, जिसमें जीव पारंपरिक एवं अपने भौतिक वातावरण से क्रिया करते हैं। यानी जो भौतिक वातावरण होते हैं उनके लिए वो सारी क्रियाओं के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। कहते हैं प्राकृतिक में दो मुख्य पारितंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, एक है स्थलीय एक है जलीय यानी टेरेस्ट्रियल एंड एक है एक्वाटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको भी बस इस बात का समझ है कि हमारे जो है सिर्फ दो ही प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो स्थलीय हो जाए या जलीय हो। कहते हैं अगर वन मरुस्थल और चरगाह स्थलीय परितंत्र की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप जो है
जलीय का लेते हो तो उसमें तालाब, झीलें, आर्द्रभूमि और लवणीय जल जो है जलीय पारित तंत्र कुछ उदाहरण है। स्वयं भूमि एवं जल जीवाश्रय यानी कोएलियम्स मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र के उदाहरण भी हो सकते हैं। देखिए कुछ जो होते हैं मानव निर्मित भी होते हैं, जो इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है पारित तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर बात देखा जाए तो जीव एवं उनके पर्यावरण के जो है अनुक्रियाएं का अध्ययन कीचड़ या पेड़ के एक कटोरे में किया जा सकता है, जो बहुत छोटे पारितंत्र होते हैं, अथवा विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र जैसे वन, नदी, समुद्र में किया जा सकता है। कहते हैं पारितंत्र का आकार चाहे कुछ भी हो, लेकिन सभी के लिए काफ़ी अभिलक्षण एक जैसे ही होते हैं, यानी सभी के सभी वहाँ पर क्रियाएं करते हैं, प्रजनन करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, जो सभी जीवों में सामान्य ही देखने को मिला है। हम मध्यम आकार वाले तालाबों के परिस्थितिक तंत्र की सहायता से इसकी संरचना एवं कार्यकारी अवयवों को समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, अगर जब तक पारित तंत्र में सही व्यवस्था न हो, कोई भी जीव जंतु जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो हमारा पारित तंत्र क्यों ना हो। देखिए यहाँ हमारा पारित तंत्र को भी लोगों ने बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं, जैसे हर चीज़ की जो है समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। अगर मान लीजिए अगर हम जीव जंतु के पारित तंत्र में भी किसी तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उनमें से कई जीव जंतु जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी पारित तंत्र को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए सही रूल, रेगुलेशन और नियम होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है, जो कि एक पारित तंत्र के अवयव के रूप में आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सभी सोर्स जो है ऊर्जा का जो है सूर्य के प्रकाश ही होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या करता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बना के पौधे बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तो इसके खाने वाले जीव जंतु जो हैं इसको खा के अपना जीवन यापन करते हैं, और जो ये जीव होते हैं उनको दूसरे जीव खा के जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पारित तंत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें आरोहण हो या पोषक तत्व हो। कहते हैं यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन किया जाता है, तो जो है अजैविक तत्व भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और कुछ अवघटक भी होते हैं जो अवघटित करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के उत्पादक के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इनको भोजन प्राप्त करना, पोषक तत्व और उपभोक्ता के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि डायग्राम में जो आपने देखा वो भी समझाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन हम अगर तालाब के पारित तंत्र को देखें तो वो भी कई मायने में हमें समझाने के लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि यह पानी का एक उथला या कम गहरा तंत्र जिसे सूर्य की किरणें भेद सकती है। इसके तल में जो है अवसाद यानी सेडिमेंट्स होते हैं, जिसे जीवित प्राणियों को पोषण प्राप्त होता है। इसमें जीवित प्राणियों के रूप में छोटे छोटे तैरते हुए पादप, जिसे निम्नलिखित वनस्पति एवं जड़ों वाले पादप है, और सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़ी मछलियां तक विद्यमान होती है, और इन सभी अवयवों को तालाब के परितंत्र को एक निश्चित आकार प्रदान किया जाता है, जिसमें हर तरह के जीव जंतु जो है सर्वाइव करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। दोस्तों अगर डायग्राम में देखोगे तो ये एक तालाब का जो है पारित तंत्र को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पादक, लवक उत्पादक, जड़ युक्त वनस्पतियाँ उत्पाद, मांस, घास या जीव कवक या आधारित कार्बनिक यौगिक तलों में पाए जाने वाले जो है शकरधारी जो होते हैं, या मांसाहारी, अवसादी, कमल, कैटरेक्स, तंतु लवक, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता। देखिए हर तरह के जीव जंतु जो है आपको जो है पानी के स्थल पे यानी जलीय तालाब में प्राप्त हो सकता है, तो इसी को ही पारित तंत्र कहते हैं। देखिए कहते हैं सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे आसपास जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो अपना निर्वाह करते हैं, वही पारित तंत्र बनाते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको जो है तालाब और एक वृक्ष को जो है एग्जाम्पल बनाया गया। कहते हैं पेड़ पौधे के समक्ष जो है कई जीव जो है अपना निवास करते हैं। चाहे एक तालाब होता है, वहाँ पर हर तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन करते, सर्वाइव करते हैं, जो कि एक पारित तंत्र का ही निर्माण करते हैं। The next topic is the structure of pond ecosystem. There is the most important here, the structure of the pond ecosystem. There the abiotic components here present is a physical and climatic regime. There is a pond receive a solar radiation which provides it the heat and the light energy for the strain of life. There is the first important here is the light. The light is the case of the well is a pond with the
clear water, sunlight, and penetrate up to be bottoms. In a deep ponds, penetration of the light depend on their transparency of water, the amount of the dissolved suspended particles, nutrient, and the number of animals and plants are determined to the transparency of their water and control the penetration of light in it. That is the most important for the role on a light of ecosystem. And second is the temperature. Here the temperature, the heating effect of solar radiation, the lead to Uranus of day and the night, or the seasonal temperature cycle in the tropical regions. Here are not be much temperature variation. At the high altitudes, there are the remarkable seasonal temperature variation. And the second is a inorganic substance. There is an inorganic substance is most important here, and these are the water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, and a few other elements like a phosphorus, sulfur as a phosphorus is depend on the location of the pond, and oxygen and carbon dioxide are is a dissolved state in a water. The all animals and the plant depend on the water from their foods and exchange of gases. There is a inorganic substance here. Yeah, like a water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, and food element is a sulfur and phosphorus. There is a oxygen and carbon dioxide. Also, there are inorganic substance here and exchange to the gas. The next is a organic compound. The commonly found organic matter in the pond is the amino acid and the humic acid, and there are breakdown product of the dead animal and plant tissue. There are partly is dissolved in the water and the remaining are accumulated in the sediment. There is a most important here. The important also here is a biotic component. There is a biotic component is a producer and autotrophs. There is a synthesize a food all the heterotrophs of their pond. There are following two types is a floating plant and rooted plant. There is a most important plant here is a floating plant and rooted plant. The floating plant is there is called to the photoplankton. Photoplankton is a photo means plant and plankton means floating. For example, Cyprogyra and the Eutroxis and the terms and Volevex. There is a most important is a floating plant here. The next is a rooted plants, and these plants occur in the is a concentrated layer from to peripheral to be a deeper zone. Some plants of rooted is a plants that are here a type of virulosis and Satygaria and Hydria rupias and Cora. There's a rupias and Cora is here, and there is a rooted plant here. But is the next is a consumer uh, or heterotrophics. They are consumers as heterotrophics. Animals which are feed directly on the autotrophs. Example, insect larvae, tadpole and snails. Or other animals, the sunfishes and the bass. And decomposer here, there is there a distribute in the walls pond but are most abundant at the bottom of the pond in the sediment is example bacteria and many different types of macro. There is the most important here. तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो है तालाब के पारितंत्र की संरचना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तालाब के पारितंत्र की संरचना। देखिए संरचना से बहुत सी बातें यहाँ पर इंटरलिंकिंग है, क्योंकि संरचना देखिए जैसे त्रिपान स्टडी सेंटर भी एक संरचना बना रहा है जिसमें हर एक बच्चों को के लिए कुछ न कुछ यहाँ उपस्थित है जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ये फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसको जो है वो बच्चे लाभान्वित हो। लेकिन कहते हैं कि मेरे एक प्रयास करने से कुछ नहीं होना है, इसमें आपका भी महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो बच्चे घर जाना है, ना उनको बार बार कहना है। आपने सिर्फ इतना अपनी तरफ से करना है कि जो है आपने देखा होगा ये लिंक जो यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो, वहाँ पर लिंक होगा इसका, उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिससे क्या होगा, जो भी बच्चों को ये वीडियो की आवश्यकता होगी वो वीडियो लेके वो लाभान्वित होंगे और हो सकता है कि आपको शुक्रिया अदा भी करें क्योंकि आपके थ्रू वो वीडियो उन तक मिला है। तो ये एक अच्छी बात है जो दूसरे बच्चे तक पहुंचने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूं कि ये वीडियो कई मायने में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जैसे मर्जी सोचो, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक बात को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और जो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में
सुचारू रूप से और ढंग से समझाने की बात होती है। तो ये कई मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और ये मुझे पता है कि आपको बहुत समझ में भी आता है, क्योंकि कहते हैं जब तक कोई टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो क्या कीजिए, इसको साइड से लिंक को जो है कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलिए कहते हैं तालाब के पहाड़ी तंत्र की संरचना। तो ये संरचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें एक अजैविक घटक और जैविक घटक दो तरह के चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक जो होती है, अबायोटिक कंपोनेंट जो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अबायोटिक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं उसमें भौतिक अथवा जलवायु व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें कई रूप होते हैं। कहते हैं तालाब सौर विकिरण प्राप्त करती है। देखिए तालाब में भी सौर विकिरणें जाती है और जो है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनको भी जो है ये सन की जो रोशनी होती है वो उनको काफ़ी हेल्प करती है उनको जीवन यापन करने में। जिससे जीवन को बनाए रखने के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मिलती है। सिर्फ हमें ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में सबको एक ही जैसा प्रक्रिया होती है और वही जो है सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही रहता है प्रकाश का। कहते हैं प्रकाश स्वच्छ जल के उछले तालाबों में सूर्य के प्रकाश तल का जो है पहुंच जाता है और गहरे तालाबों में प्रकाश की वेधन सीमा जल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है, जो घुले हुए कणों और पोषक और जंतुओं को पादपों की मात्रा द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश तब तक नहीं अंदर पानी तक पहुंचेगा जब तक वो साफ सुथरा नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए कचरा भरा हुआ है तालाब में, तो क्या उसका प्रकाश जो है जीव जंतु को प्राप्त होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि जो कचरा है वो प्रकाश को जो है रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी उस तक जो है प्रकाश पहुंचने नहीं देगी जीव जंतु तक, जिसकी वजह से कई जीव जंतु जो है अपना प्राण को भी त्याग देंगे। तो इसलिए हर जीव जंतु के लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता महसूस रहती है। उसके पश्चात है तापक्रम। देखिए टेम्परेचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप टेम्परेचर सिर्फ आप ही इनहेल करते हो, आप ही लेते हो टेम्परेचर? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है हर एक जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जीव जंतु चाहे वो पानी में रहते हो चाहे स्थल में रहते हो, दोनों के लिए जो है तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं सौर विकिरणों के ऊष्मीय प्रभाव के कारण दैनिक दिन रात का जो है मौसम जो है ताप चक्रों का निर्माण होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ताप परिवर्तन नहीं होता है। उच्च अक्षांशों के कारण मौसमी ताप में परिवर्तन अत्यधिक देखने को मिल सकता है। अब उसके पश्चात हमारे समक्ष है अकार्बनिक पदार्थ। देखिए अकार्बनिक पदार्थ जो होती है इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कुछ दूसरे तत्व जैसे कि सल्फर और फास्फोरस तालाब की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि इनके लिए कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ अवस्था में रहती है, यानी घुले हुए अवस्था में ये तालाबों में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो सभी जंतु एवं पादप अपने भोजन एवं गैसों के आदान प्रदान के लिए जल पर निर्भर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के लिए जल जो है एक अमृत तुल्य माना जा सकता है। कहते हैं अगर कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो तालाब में सामान्यतः पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल और ह्यूमिक अम्ल होते हैं, जो परंतु जिसमें जंतु एवं पादप उसके विभाजन से प्राप्त उत्पाद होते हैं, ये आंशिक रूप से जल में घुले रहते हैं और शेष अपसाद यानी सेडिमेंट्री के रूप में जमा रहते हैं। कहते हैं दोस्तों कई चीज़ें जो होते हैं जलों को प्रदूषित कर दिया है, जिसकी वजह से जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो कहते हैं इंसान की गतिविधियों के कारण ये जीव जंतु जो है दिन प्रतिदिन जो है नष्ट होते जा रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात है जैविक घटक। देखिए जैविक घटक में उत्पाद अथवा स्वयं पोषी आते हैं। ये तालाब के सभी विषम पोषी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं प्लावी तैरने वाले पादप और दूसरा जो हो सकते हैं जड़ युक्त पादप, यानी आप कह सकते हो कि एक फ्लोटिंग जो प्लांट हो सकता है, एक जो होता है रूटिंग्स प्लांट्स हो सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर हम पहला देखें तैरने वाले पादप, जिसको हम प्लाविस पादप भी कहते हैं, इसको जो है पादप प्लवक यानी फैटो जो है प्लैंकटन भी कहते हैं। फ्लाइपो का मतलब होता है पादप और जो है प्लैंकटन का मतलब होता है पलवी या तैरने वाला पौधा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो स्पोक गायरा है, यूलोथ्रिएक्सा है,
ठीक है, डायटम्स है और जो बाल्य वृक्ष भी इसके रूप में पाया जा सकता है। उसके पश्चात है जड़ युक्त यानी रूटलेस जो पादप होते हैं। ये वो पादप होते हैं जो परिधि से लेकर गहन क्षेत्र में सकेंद्रीय परतों में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहो तो इसमें है टाइफा, सेजिटेरिया, हाइड्रिया और रुपिया कड़ा आदि पाया जाता है इसमें। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपभोक्ता या विषमपोषी। देखिए, उपभोक्ता या विषमपोषी ऐसे जंतु जो सीधे स्वयंपोषी जैसे कीट, लार्वा, टेडपोल, स्नेल या अन्य जंतु जो है स्नाफिश और वास का भक्षण करते हो, उसे उपभोक्ता या विषमपोषी कहते हैं। यानी देखा जाए जो कीट पतंगों को खा के अपना जीवन जो है बिताते हैं उसे हम जो क्या कहते हैं, उपभोक्ता यानी विषमपोषी में आता है। और अपघटक का मतलब होता है कि जो मरे हुए चीज़ों पर जो है जीवित रह के और उसका जो है अपघटक कर देता हो। जब सारे तालाब में पाए जाने वाले लेकिन मुख्यतः तालाब की तली के अवसाद में भी विद्वान होते हैं, उदाहरण जीवाणु और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है।